Hi guys, welcome to Juvenile Spot. Let's start with the video. Welcome to the season 1, episode 2 of the placement talks with Juvenile Sport. Apurvi Di is none other than she's my senior from a batch of 2020 from Thapa University. She got placed at one of the high profile company, Amdocs. She is a coding enthusiast. She completed her undergraduate degree in electronics and communication engineering. So here we go with the session. And also, I would like to tell you one thing. She aims to help the society in every way she could. So heading over the session, the Amdocs कैसी company है? Like what is Amdocs actually? Amdocs is a software service provider. So what they do is they provide services in the telecom, media, and financial domain. So I'll just give you a simple scenario. For example, अगर मैंने Wi-Fi लगवाना है घर पे, so what I'll do is I'll just look for the service providers and I'll just choose one and call the customer care that I need a connection at my home. So whatever goes into the process from placing order and all the processing which is taking place at the back end. So that is all done. That is all automated processes. So this is done through the softwares which Amdocs provides. So this is what Okay, Amdocs do. great company it is. Okay, Didi, do you have Yeah. any other friend working in the same company? Yeah, I have. Actually, she and I were in the same batch from first year of college, and now we are in the same company. So, but we are just separated by the location. She will be at Amdocs Pune, and I'll be at Amdocs Gurgaon. So yeah, we are just trying to relocate to the same location. So things will be a Yes, bit easier when you know somebody. yes, even it helps as a support system when you have someone whom you Yeah, know from the very beginning. yeah. Dee, how are you finding at Amdocs? Like मजा आ रहा है या ट्रेनिंग कैसी जा रही है? Yeah, training has been pretty good. So, in 1.5 months of training, what we went through was the corporate training. So, every fresher or employee who joins a new company, he has to learn certain tools. You can say basics. कि वो तुम्हें बेसिक जावा भी सिखाएंगे वो तुम्हें मतलब यू कैन से गिट वगैरह ये सब बेसिक चीजें हैं सो ये सब तुम्हें वो सिखाएंगे इन 1 मंथ ऑफ ट्रेनिंग एंड इस 1 मंथ में हमें इनफॉर्मल ट्रेनिंग्स भी बहुत मिली हैं मतलब बहुत फन एक्टिविटीज भी हुई हैं एंड वी इवन हैड अ कनेक्ट सेशन तो उसमें सब परफॉर्म किया सबने तो एनीथिंग लाइक दैट एंड एवरी फ्राइडे वी आर हैविंग अ सेशन in which we play tambola and other games on Mentimeter and all. So these are fun activities every weekend and all. तो मतलब ओके फर्स्ट ग्रेट मंथ तो काफी अच्छा रहा तो अब लेट्स सी अब आगे यूनिट ट्रेनिंग में कैसे जाता है great Dee, great. And how did you know that this company was coming to your college? Yeah, and how did this work? Was the call did the college alarmed you regarding the company, or like how does it work? या तो क्या होता है कि प्लेसमेंट वाली सारी कंपनीज यूजुअली सिल्क के थ्रू ही आती हैं तो फर्स्ट वी गेट अ नोटिस तो वहां पर बाहर भी नोटिस लगता है सिल्क के ऑफिस के बाहर तो यू जस्ट गेट टू नो अबाउट कि कब कंपनी आ रही है उसका टेस्ट कब होगा इंटरव्यूज कब होंगे सीजी कट क्या है सीटीसी एंड ऑल तो ये सब प्रोसेस फॉलो होता है तो जब टेस्ट होना होता है तो उसी दिन या फिर उससे लाइक 1 डे बिफोर तो द कंपनी कम्स फॉर द प्रेजेंटेशन दे जस्ट टेल यू व्हाट दे डू एक्चुअली एंड इवन यू कैन क्रॉस क्वेश्चन देम कि तुम्हें कुछ भी डाउट्स हैं कि कुछ बोनस में कुछ सीटीसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी ग्रोथ रिलेटेड कुछ भी रेवेन्यूज तुम्हें पूछने हैं कंपनी के मतलब कुछ भी एनीथिंग यू कैन जस्ट आस्क देम so they are very friendly so that was a very big thing which the people in this virtual scenario would be missing so matlab face to face interaction is I guess much better than the virtual one so yeah but we have to deal with Okay, this great Dee, great. And something you learned till now, like working with Amdocs. um actually I've learned
many technologies in this training period. तो क्या होता है कि तुम प्लेसमेंट में सिर्फ प्लेसमेंट टाइप चीजें पढ़ रहे हो, तो तुम उतना टेक्नोलॉजीज पे इतना वर्क नहीं करते हो। तो तुमने अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए होते हैं प्लेसमेंट के टाइम पे। तो बात ये कि जैसे हमने जावा पढ़ी, तो जावा के आगे फ्रेमवर्क्स हैं, तो आज तुम्हें एक्चुअली उनके साथ डील करने को मिलेगा व्हेन यू कम इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड। तो वही चीजें हमें टूल्स अभी सिखा रहे हैं, तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट। It's like going into the practical world. You deal with practical things all एग्जैक्टली, around. प्रैक्टिकल। Great, Dee, great. And how did you start preparing for this company? Like the ending of the third year, starting of the second year? Yeah, matlab, how did you do that? Actually, I think I started preparing a bit late. At the end of third year, you just finish your third year around May. ESC was over in May. So I just started preparing around that time. तो मतलब या इट डिपेंड्स अपॉन यू। कुछ लोग 1 साल पढ़ के अपनी प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ 6 मंथ्स, कुछ 3 मंथ्स, एंड कुछ मतलब शायद उस टाइम पे ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं प्लेसमेंट में, एंड फिर भी उनकी हो जाती है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि हाँ मुझे कब स्टार्ट करना है प्रिपेयर। तो मतलब वही चीज है कि अगर तुम्हारा एम हाई है तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा जल्दी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो या Okay, great. And how did you prepare? Like there were some websites or like a particular book that you followed? पर्टिकुलर बुक तो नहीं है as सच कोई। तो देर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स, मतलब बहुत वेबसाइट्स है, तुम्हें बहुत मटेरियल मिलेगा ऑनलाइन। तो अगर तुमने सॉफ्टवेयर में जाना है तो आई गेस अगर तुम्हारी रीडिंग एंड तुम पढ़ के काफी चीजें समझ लेते हो अच्छे से, तो गीक्स फॉर गीक्स तो बेस्ट है उसके लिए। तो अपनी हैबिट बनाओ, अगर तुम मतलब पढ़ के कोडिंग करते हो, या रादर देन गोइंग फॉर द वीडियो ट्यूटोरियल्स, तो वीडियो ट्यूटोरियल्स भी बहुत हैं यूट्यूब पे, तो यू कैन जस्ट गो फॉर दैट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। बट आई वुड से कि अगर तुम्हें हैबिट डालनी है तो रीडिंग की बहुत अच्छी हैबिट है कि अगर तुम पढ़ के चीजें करते हो, कोई बुक फॉलो करते हो। बुक्स भी हैं काफी कोडिंग के लिए, तो एल्गोस की बुक्स आती हैं, तो वो भी अच्छी बुक्स हैं, तो गीक्स फॉर गीक्स भी अच्छा है। एंड द अदर थिंग इज कोर्स, यू कैन टेक अप कोर्सेज फ्रॉम कोडिंग निंजास और ब्लॉग्स, तो उनके प्लेसमेंट कोर्सेज आते हैं, उनके डेटा स्ट्रक्चर वाले कोर्सेज आते हैं, तो वो दे आर रियली गुड। तो वो तुम्हें मतलब एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है उससे कि हाँ ये चीजें मेन है, ये करनी है हमने। Okay. Andy, how did you know this company was coming to college? दैट इज थ्रू द प्रोसेस बाय सेल्फ ओनली। तो हमें आ जाता है नोटिस, फॉर्म्स आ जाते हैं, तो सब टाइमली होता है, ऐसे स्मूथ प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं होता कि तुम्हें यहाँ एक दिन पहले पता लग रहा है यहाँ कि अगले दिन टेस्ट है, तो ऐसा नहीं होता। तो मेरा तो ऐसा हुआ था कि जैसे हमारा टेस्ट पहले हो गया था, तो उसके बाद एमएसटी आए, फिर उसके बाद था इंटरव्यू, तो काफी टाइम मिल गया था बीच में प्रेपरेशन के लिए। Okay. बट Like कुछ कंपनीज का Amdocs ऐसा भी की होता है। हम्म। नहीं, you were saying something. या तो कुछ कंपनीज का होता भी है कि जिस दिन टेस्ट हुआ उसी दिन शाम को इंटरव्यू है, तो इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी, तो यू शुड बी Okay. प्रिपेयर्ड फॉर बोथ थिंग्स। Okay. See, the rounds कितने होते हैं? Like आपकी Amdocs कंपनी में कितने rounds थे? पहला तो इट्स लाइक ऑनलाइन टेस्ट, वो तो होता ही है हर कंपनी का जैसे। Hmm. Second round was we were divided into groups of like 8 to 10 students, and we were given 2 or 3 codes to write in a specific amount of time कि तो फिर उसके basis पे they just send you to another round. So another one was a technical interview round. तो इट डिपेंड्स, किसी का वो राउंड जैसे हाफ एन आवर चलता है, किसी का 1 घंटा 2 घंटा भी चला जाता है, तो तुम्हारे पे है। वो हो सकता है तुम्हारे रेज्यूमे में से तुमसे ज्यादा पूछ लें, तो तुम्हारे कोडिंग स्किल्स पे भी हो सकता है तुम्हें ज्यादा पूछ लें, हो सकता है तुमने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है या डेटा स्ट्रक्चर लिखा है, तो वो तुम्हें उस पे दे विल चेक अपॉन योर स्किल्स। तो हाँ, तो ये थोड़ा वेरी करता है इंटरव्यू। एंड लास्ट वन इज द एचआर राउंड, तो वो तो मतलब या चिल सा होता है, थोड़ा नॉर्मली होता है।
Okay. Like, what do they ask in interviews? Like, non-technical questions or technical questions? Like, जो सबसे पहला round हुआ था, online round, what type of questions do they ask? तो ऑनलाइन राउंड में क्या होता है कि अगर तुम किसी भी कंपनी में बैठ रहे हो ना, सपोज कोई फाइनेंस वाली कंपनी है, कोई तुम नॉन टेक में बैठ रहे हो या टेक्निकल या कोर किसी में भी, तो तुम्हें क्या होगा, एक तो तुम्हें उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे फाइनेंस वाले तो फाइनेंस से रिलेटेड तो आएंगे ही, कोडिंग वाले तो कोडिंग से रिलेटेड आएंगे ही। तो उसके अलावा क्या होगा, तुम्हारा एप्टी अच्छा होना चाहिए। तुम्हारा एप्टी स्ट्रांग होगा ना, तो तुम्हारा 30% तो तुम सोचो कि तुम्हारा हो गया बस काम। तो एप्टी स्ट्रांग रखो, एप्टी हर टेस्ट में आएगा। तो मतलब एप्टी आएगा। एंड फिर एंड इंटरव्यूज के लिए पजल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो वो भी मिल जाते हैं, गीक्स फॉर गीक्स में है पजल्स। तो एक या दो पजल्स तो पूछते हैं इंटरव्यू राउंड्स में। इजी पजल्स होते हैं, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। वो एक तरह से तुम्हारी कह सकते हैं प्रेशर चेक करते हैं कि तुम प्रेशर में दे रहे हो इंटरव्यू या फिर अपने कूल चिल माइंड से दे रहे हो। तो वो आइस ब्रेकर होते हैं एक तरह से। तो पजल्स अच्छे होने चाहिए। एंड बाकी तो मतलब वही है कि वो तुम्हें कोडिंग स्किल्स पे ही चेक करेंगे अगर तुम सॉफ्टवेयर के इंटरव्यू में बैठ रहे हो। Okay, so what type of questions interviewer asks? Like coding के related questions होते हैं वो. हाँ, कोडिंग से ही रिलेटेड होंगे वो। उन्होंने एक्चुअली तुम्हारा एल्गो ही चेक करना होता है। वो तुमसे 100 लाइन का कोड नहीं लिखवाएंगे वहां पे। दे जस्ट वांट टू चेक Okay. कि तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है या फिर तुम मतलब सोच रहे हो उस अप्रोच से, और तुम कितना ऑप्टिमाइज कर पा रहे हो अपने कोड को। तो वो चीजें वो चेक Okay. करते हैं। तुम्हारे कुछ कंपनीज होती हैं तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। जैसे तुम इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ते हो ना कहीं पे साइट्स पे जाके। जैसे सपोज कोई कंपनी आ रही है तो तुमने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़े, तुम्हें 5-10 एक्सपीरियंस पढ़ के थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये कंपनी ज्यादा एसक्यूएल पे फोकस कर रही है या फिर ये कंपनी ज्यादा ऊप पे फोकस कर रही है। तो तुम उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। Okay, the great one. And what do you say, like technical versus non-technical? अगर किसी बंदे को let's say technical में job लेनी है, फिर भी technical क्यों जरूरी होता है? और non-technical क्यों जरूरी होता है? यार मैं तो यही बोलूंगी, ये टोटली इंटरेस्ट पे है तुम्हारे। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है ना, तो तुम मतलब कितने भी अच्छे हाई प्रोफाइल जॉब में चले जाओ, तुम्हें ऐसे होगा कि यार क्यों यार अगले दिन उठ के काम करना पड़ रहा है। तो अपना इंटरेस्ट देखो पहले कि कहाँ पे है। अगर तुम्हारा नहीं इंटरेस्ट बन रहा कहीं पे टेक्निकल में, या तुम्हें नॉन टेक्निकल नहीं पसंद, तो यू ऑलवेज हैव अदर 100 ऑप्शंस। तो मत जाओ किसी और तरफ। तो एक ही चीज को प्रिपेयर कर लो। जैसे अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो टेक्निकल के लिए तो यू विल गेट थ्रू दिस। तो अगर तुम नॉन टेक के लिए भी कर रहे हो तो आती हैं काफी कंपनीज, तो हो जाएगा। Okay. If the like apart from college placement अगर किसी को apply करना है तो वो कैसे apply कर सकता है? कोई idea है मतलब? यार मतलब अगर ऑफ कैंपस चाहिए तो एक तो थोड़ा एक्टिव रहो इन पे। यू कैन से लिंक्डइन वगैरह पे, लिंक्डइन, इंटर्नशाला एंड naukri.com पे। तो यहाँ पर काफी जॉब ओपनिंग्स आती रहती हैं, तो यू कैन अप्लाई टाइम टू टाइम। बाकी ये है कि ऑफ कैंपस में होता है कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स आते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा चांस अपना कम हो जाता है शॉर्टलिस्ट होने का। तो बाकी होती हैं ऑफ कैंपस भी, तो थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए इन सब पे। दी लाइक ऐसे कई बच्चे होंगे जिनके कॉलेज में एमडॉक्स जैसी कंपनीज ही नहीं आती, तो अगर उनको अप्लाई करना है तो वो एमडॉक्स में कैसे अप्लाई करें? हाँ, तो उनके लिए यही ऑप्शंस हैं। एक तो वेबसाइट्स पे जिस भी कंपनी के लिए जाना, तुम्हें करियर ऑप्शंस वाले मिल जाते हैं उसपे, उस कंपनी के वेबसाइट पे। तो वहां पर तो है ही है ना जॉब ओपनिंग्स, तो वहां पर मिल जाएंगी, या फिर तुम्हें लिंक्डइन से भी मिल जाएंगी। तुम कंपनी के पेज पे जाओगे एंड वहाँ पे जॉब्स वाला ऑप्शन होगा, वहां पर ओपनिंग्स होती हैं। एंड तुम नौकरी प्रोफाइल पे अपना प्रोफाइल अपडेटेड रखोगे तो उससे भी तुम्हें मिलते हैं ऑप्शंस। तुम रिक्रूटर्स तुम्हें अप्रोच करते हैं। तो यही है ऑप्शंस तो। एंड ओके दी, अदर ओके। थिंग इज तुम रेफरल्स के थ्रू जा सकते हो अगर तुम्हें ऑफ कैंपस जाना है तो वो वही है, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो तुम्हें रेफरल्स के थ्रू भी स्विच कर सकते हो।
So we now have a rapid one-word round to play with you. So the very first one is Amdocs. First job, Internships. exposure, Okay, and then is placements. depends. You cannot just say that everybody wants or everybody needs to have a placement. It's up to your choice. Okay, and then is societies. Yes or no? Uh, yeah, yes. Obviously, for memories, fun, you would learn a lot of things. Okay, and one word explanation or इसके लिए. आई वुड से कॉन्टैक्ट्स बनेंगे तुम्हारे एक तो, ठीक है। तुम सीनियर्स के एक्सपीरियंस से तुम बहुत कुछ सीखते हो। तो मतलब आई वुड से कि सोसाइटीज ज्वाइन करो, और मतलब कॉलेज इज नॉट ऑल अबाउट स्टडीज एंड ऑल सीजीपीए, मतलब मार्क्स लेने के लिए वो तुम वैसे भी ले आओगे। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो इतनी सोसाइटीज में थे एंड उनकी सीजी, मतलब मैं बता नहीं सकती इतनी अच्छी सीजी उन्होंने मेंटेन करके रखी थी। तो ये मिथ होता है कि हाँ सोसाइटीज वालों के मार्क्स नहीं आते या सोसाइटीज में लगे रहते सारा दिन पढ़ाई नहीं करते। तो मतलब दोनों चीजें बैलेंस रखना चाहिए। Okay, and the very last one is advice to juniors. माय एडवाइस इज नेवर गिव अप। पॉइंट इज कि किसी को प्लेसमेंट, अगर तुम प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इट्स लाइक किसी को शायद फर्स्ट इंटरव्यू में ही मिल जाएगी प्लेसमेंट, और किसी को 10 इंटरव्यूज भी देने पड़ेंगे। तो बात ये है कि 10 के बाद भी गिव अप मत करो, और अपने हर इंटरव्यू से कुछ लेसन लेके आओ कि मुझे उसने ये बोला था इंटरव्यूअर ने कि हाँ यू आर वीक इन दिस। उनसे अपने रिमार्क्स भी लो कि तुम नेक्स्ट इंटरव्यू में उस चीज को इम्प्रूव कर सको कि I'll just come up stronger next time. So that is my advice. Like never give up in interviews. हो जाएगी यार, क्या ही फर्क पड़ता है। सही है दी। और ना एक लाइक बहुत जनरल एक थॉट था जो सबके मन में आता है कि अगर प्लेसमेंट ना हुई तो क्या बनेगा हमारा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इस थॉट के कारण ही मतलब ऐसा होता है कि मतलब यू गेट इंडल्ज इन वेरियस मेंटल प्रॉब्लम्स एज वेल। सो डू यू गिव एनी एडवाइस? कहते हैं कि यार जिंदगी ये खत्म हो जाती है, नहीं मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी कि जिनकी प्लेसमेंट हो जाती है उनकी भी कोई जिंदगी ना बहुत ऐसे सॉर्टेड नहीं होती है, ठीक है। तो तुम्हारे पे अपने पे है यार, मतलब हो जाएगी प्लेसमेंट, कॉन्फिडेंट रहो। प्लेसमेंट्स में क्या होता है, लक भी बहुत मैटर करता है। ऐसा मुझे लगता था कि मतलब है 20 to 30% यू कैन से कि हाँ लक मैटर करता है, बाकी तुम्हारी हार्डवर्क ही है, तुमने जितनी देर किया है। और तुम्हें लिटरली प्लेसमेंट्स में ना याद आएगा कि यार मैंने उस टाइम वेस्ट कर दिया था, पढ़ लेता या कुछ कर लेता। बट फर्क नहीं पड़ता, बस तब पड़ता है थोड़ा कि तुम्हारे फ्रेंड्स जब ग्रुप में प्लेस हो रहे हो एंड यू आर लाइक यार मैं रह गया अकेला, मैं रह गया, बस उतना होगा। तो ठीक है यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई 1 महीने में प्लेस हो जाएगा, कोई 4 महीने में हो जाएगा, किसी को 10 महीने लग जाएंगे। तो मिल जाएगी यार सबको, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं। और नहीं भी मिली तो यू ऑलवेज हैव 1000 ऑप्शन। तुम 100 चीजें करने के केपेबल हो। अगर एक प्लेसमेंट नहीं हुई तो उसके अलावा तुम बाकी लोगों से बहुत बेटर हो। तो ये चीज तुम्हें थोड़े टाइम बाद पता लगेगी, बट उस टाइम नहीं, हमें भी नहीं समझ आता था उस टाइम कि हाँ यार मतलब हमें तो प्लेसमेंट ही चाहिए, प्लेसमेंट ही चाहिए। बट ठीक है, अगर नहीं भी हो रही है तो पॉजिटिव रहो, बहुत कुछ कुछ होगा तुम्हारे लिए आगे बेटर। सही है भी। और एक एडवाइस लाइक रिगार्डिंग लिंक्डइन कि सबको करना चाहिए लिंक्डइन, कुछ ऐसा हाँ है कि करना लिंक्डइन? चाहिए, एटलीस्ट तुम्हारे सेकेंड या थर्ड ईयर में आके तुम्हें बनाना चाहिए उस पे अकाउंट, तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा। उस पे पोस्ट भी काफी अच्छे आते हैं। मतलब तुम्हें अगर तुम्हें स्टॉक्स वगैरह में, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो उसमें उसके बारे में भी लोग बहुत डालते हैं। तो मतलब तुम्हें आजकल क्या हो रहा है ना, बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चीजें ढंग की कम है और नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है। तो जो थोड़ी बहुत मुझे लगता है पॉजिटिविटी है, जो तुम्हें थोड़ी नॉलेज देगी एज ए सोशल प्लेटफॉर्म चीजें, तो वो तुम्हें लिंक्डइन से मिल जाएंगी। और तुम्हें मिल जाते हैं काफी, तुम्हें काफी जॉब्स होती हैं उस पे, काफी ओपनिंग्स रहती हैं। तो तुम्हें पता ओके, लगता रहेगा। एटलीस्ट अगर तुम्हें नहीं भी वहां से मिल रही जॉब तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ इस कंपनी की ओपनिंग्स हैं, तुम प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए जब तुम्हारे कॉलेज आ रही है। तो हमारे टाइम पे तो हमें आधी कंपनीज के नाम भी नहीं पता होते थे। मतलब हमारी प्लेसमेंट से 1 साल पहले लिटरली नाम पता थे कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है।
तो तुम्हें देख देख के चीजें पता लग जाएंगी, तो बनाना चाहिए अकाउंट उस पे।